Previous class, we discussed about the what is democracy, and I start my lecture with very simple definition that democracy is that form of government in which the rulers are elected by the people. Then we elaborate the definition properly. Who are these people? Form of government and the rulers. We discuss thoroughly about the definition, and we also come to know about the difference between what democratic countries and non-democratic. What are the features of democratic countries and non-democratic countries? So many examples we understand like the Chile, Poland, Mexico. With these we come to know that the features which are in Indian democracy that is not in we can say that in other countries also which are all to be a democratic nation, but they do not have all the features which Indian countries have. So today we already discussed about what is democracy thoroughly and features also. Now today I am going to start our next part of the chapter, that is why democracy. According to the textbook, there is an argument, there is a discussion and debate between the students and teachers. There are some students who are arguing with each other that the democracy, some are just favoring the democratic form of government, some are in against of that. So still the argument and discussion is going on. And one student is just arguing uh, that we accept the democracy because it is very famous. Because most of the countries today they wanted to accept or called to be called as a democratic nation. I told you that China is called to be a democratic nation, but what is the reality is there that only single party, one major party is there, and seven aligned parties is there. If any person is want to contest election, has to take approval of this communist party. So we cannot say that China is a democratic nation. So in this way, come to know that why and what here the why democracy is here, that it is very famous that we can say that these are the two democratic nations are still called to be a democratic nation. What is the reason behind it? So some students are arguing that democracy is only just like the instability, struggle, dirty politics, and all that. On the other hand, one student is arguing that it's far better that the past should be just concentrated in some few hands and take quick decisions. Then single girl is there who argued that it is a type of a dictatorship, and you are just another student is saying, I want idle and honest leaders. Here, the concentration of power in which people idle and honest. Then it means uh, democracy is comparing with the dictatorship that is good dictatorship. But what is the correct comparison is we should compare the things equal, like the real democracy with real things. Good dictatorship with another good dictatorship. So in this way, this comparison is not correct. So we come to the here. The topic is why democracy. Here, some that the students who are against of the democracy, argument against democracy. What are these arguments? The defection. First of all, you have to understand it is a political terminology. You should understand defection. What do you mean by this? You also heard about the members who left the party for their own interest. This is called a defection. Party change. यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना क्या कहा जाता है? Defection. तो यू सी वेरी कॉमन फिनोमेना इन इंडिया कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो आप सुनने में आता है कि उसने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली. इट इज कॉल्ड एज डिफेक्शन. तो इट इज अगेंस्ट ऑफ द वी कैन से इट इज आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी में क्या है कि नेता जो है ओन इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, अपने पर्पजेस को पूरा करना चाहते हैं. जबकि आपको पता है कि यहाँ पर अभी तक ऐसा लॉ नहीं बना है. अभी तक ऐसा लॉ नहीं बना है, लेकिन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए एंटी डिस्ट्रक्शन लॉ की डिमांड की जा रही है कि अगर कोई मेंबर पार्टी को चेंज करता है तो उसको रीजन देना होगा, और वो रीजन कैसा होना चाहिए, पब्लिकली जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए और पॉलिटिकली. तो दिस इज द डिफेक्शन. अब सेकंड थिंग क्या है, उसमें कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी इज टोटली डर्टी पॉलिटिक्स. डेमोक्रेसी क्या है? डर्टी पॉलिटिक्स है जिसमें राजनेता क्या करते हैं,
अपनी ओन इंटरेस्ट को, सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी लेवल तक जो है वो चले जाते हैं. They just don't consider about the welfare of the people. They just want to fulfill their own desire and want. किसी पे भी किसी का एलिगेशन लगाते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, है ना. ये सारी चीजें हम क्या देखते हैं, डेमोक्रेसी में देखते हैं. तो अभी मैं जैसे जैसे आपको समझा रही हूँ तो आपके दिमाग में आएगा कि शायद डेमोक्रेसी बहुत खराब चीज है ना. तो हमें ऐसा लगेगा कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन when we come with the fourth sector, when we compare the democracy with another countries, then we come to know the features of democracy. The third argument against democracy, role of ordinary people. You know that in democracy, who choose the government? Like us. We are the citizens of nation. We have the right to vote. That's why we choose the government. But there is a question that the government which is chosen by the ordinary people, that government is the correct government, is the good government for the people. It is not sure. But with the course of time, we see it's just very common thing that a party who contests election wants to become another after 5 years, once again want to win the election. वापस जीतना चाहेगा कि नहीं चाहेगा भाई. एक कोई पार्टी मेंबर आता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा ऐसे लाती है कि भाई अगर हमारी पार्टी सरकार बनाती है तो लोगों के लिए ये काम करेगी. ठीक है. तो हम उस सरकार को हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंडा जो हम सुनते हैं, उनकी रैलीज होती है, उन बेस पे अपने वोट दे देते हैं. वी आर ऑर्डिनरी पीपल and we are choosing the government on the basis of agenda, political parties agenda, political members, sometimes the political head also. These are the types of that how we cast our vote on what basis. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो ऑर्डिनरी पीपल का रोल क्या है कि हम सरकार को चुनते हैं, लेकिन वो कैसी गवर्नमेंट होगी ये उस समय जब हमने उसको इलेक्ट किया तब कुछ नहीं, जब वो काम करती है ना, जब वो वर्क करती है लोगों के लिए. या हम अब ये देखना होगा कि when the government is elected, after that the government starts to misuse its own power and try to encroach the rights of the common citizens. अगर ऐसा होना लग जाए तो वो सरकार डेमोक्रेटिक होगी क्या? वो गवर्नमेंट क्या होगी? वो तारे नहीं हो जाएगी, डेस्पोटिक हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी वहां पर. So this is also argument against democracy. But in spite of all the arguments against democracy, when we compare democracy with another the country's democracies or another form of government, we realize it is the best form of government. Now they have to argue, we have to consider, we have to be very rational to know why democracy is the best form of government. So all these topics we will discuss. Because a very first lecture I told you, whenever we come to know the features of even if I want to know the features of any person or any family or even any society, we should compare with the person. Sometimes it is said that we should not compare the person to person. But quality wise, if you want to improve the quality of anybody, the person is more valuable, the person is more valuable, then we recognize the qualities of the person. That's why it's very necessary that we should also know what is good and what is bad, what is justified or what is not. So that's why the argument for a democracy here, that why we should prefer this form of government, we will understand through a very good example of China. I told you about the China's political system, and here we will discuss about the China, what happened there. In 1958 to 1961, there was a huge famine there, like because of the policies of the programs of the Chinese government, or we can say China government, 3 crore people they were died there. And the political thinkers they were thinking about all that if the in China there was a multi-party system and the freedom of press, the deaf people of these the number of deaf people would be reduced. कहने का मतलब क्या है? अब हम इसको इंडिया से कंपेरिजन करें तो इंडिया में सबसे पहली बात तो इतने सालों में कभी ऐसा फरमान आया ही नहीं. और इंडिया के अंदर अगर क्राइसिस आए हैं तो गवर्नमेंट क्या हुई है, मोर अकाउंटेबल, मोर रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ द पीपल. हमने ज्यादातर अपनी सरकार को क्या दिखा है, अभी आप देख लीजिए, दिस इज अ लाइव एग्जांपल बिफोर यू, कोविड-19.
that this is a crisis the whole the world is suffering here. But just the what is the crisis we are facing today? It is tackled by the different nation differently. Different governments forming their policies just to fight against this virus differently. लेकिन अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, दे आर वेरी कंसर्निंग, दे आर वेरी वी कैन अटैच टू द नीड्स ऑफ द पीपल. So all these facts we come to know that why we say that democracy is the best. First reason is clear, I hope so. So अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना में ऐसा हुआ तो इंडिया में ऐसा कभी, अच्छा एक बात बताइए, वहां पर अगर हम सेनाइन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं इंडिया में. सेनाइन का मतलब समझ रहे हैं, ग्रॉस कंडीशन सेनाइन भी 3 तरह का होता है. अब सेनाइन यहाँ पर हम कुल मिला के समझ लेते हैं कि जहाँ पर फूड फॉडर और वाटर तीनों भी 3 तरह का होता है, तो 3 तरह में हम फूड वाटर फॉडर और वाटर तीनों की क्राइसिस को समझ लेते हैं. लेकिन in comparison of China, in India, the Indian government is more concerning, more accountable, more sensitive to the needs of the people. That's why here is a food security. In your 9th class, you will also read in economic food security. जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, सीडीएस सिस्टम के थ्रू फूड सिक्योरिटी दे रही है. अब जहाँ पर फूड सिक्योरिटी है तो वहां पर क्राइसिस क्या होंगे, कम होंगे. लोगों को प्रॉब्लम क्या होगी, वो कम होगी. तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि वो गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोगों के लिए है, लोगों ने बनाई है, वो वास्तव में लोगों के लिए काम कर रही है. That's why what is the feature? A democratic government is better government because it is the more accountable. Feature is clear? Accountable means answerable, responsible. Here, that the people, the needs of the people, towards the needs of the people, aspiration of the people, and goals of the people. It can be only fulfilled in democracy. And it is according to that's why in our constitution, democratic form government is mentioned there, and some functions are also there. So keep in mind this feature we discuss with China or Chinese government. कोई भी आपको अगर कंपैरिजन करना हो, मतलब कहने का मतलब है किसी के फीचर जाने हैं तो हमें कंपैरेटिवली स्टडी करनी पड़ती है उस चीज की, तभी हमें समझ में आता है. Now I move to the second feature here. Democracy improves the quality of decision making. चलिए अब मुझे एक बताइए कि कहाँ पर गारंटी है इस चीज की कि उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिस्टेक्स नहीं होगी, या उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिसको कहा जाए कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो 100% सही होगा. There is no guarantee about it. But in democracy, what is the scope here? That there is, you know, that democracy is there is a power sharing system. Federal form of government is that. So power is shared between different levels and organs, and number of people they are connected of taking the decision. And if any problem is there, like COVID-19, I'm just giving it because now we are just suffering from all the world is suffering from this. That's why here, like we can take the example here, the number of people. First of all, the central government was authorized to take decision how to tackle this problem. आपको पता है लॉकडाउन फर्स्ट सेकंड जब हुआ उसके बाद क्या हुआ, subsequently the powers are given to state government. Right to understand. धीरे धीरे अब जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को पास दे दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले कि कितना कहाँ पर रिलैक्सेशन देना है, कहाँ पर उस चीज को कंट्रोल रखना है. समझे बात को? मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि कुछ इस तरह का कोई कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं कि दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल. देखो लोगों की डेमोक्रेसी हम जो कह सकते हैं जिससे उसका जो टेस्ट है ना वो कभी ओवर नहीं होता, क्योंकि हमारी एक एस्पायरेशन कंप्लीट होती है तो दूसरी डिजायर आ जाती है, दूसरी कंप्लीट होती है तो तीसरी. जो हमारी गवर्नमेंट है वो उन चीजों को पूरा ही करती रहती है. लेकिन ये एस्पायरेशन गोल्स कहाँ हम लोग बता सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम अपना वी कैन जस्ट एक्सपोज आवरसेल्फ, तो वो है डेमोक्रेसी. जो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो आपको पता है कि वहां पर कौन है, किम जोंग. अब आप जाके अपने डिजायर को वहां रखिए, आपको खत्म कर देगा. लेकिन they have their system to keep ourselves in front of the government, तो फिर से आप डिजायर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं. we have the right to protest against the government. धरना, रैली, स्ट्राइक, बहुत सारे फंडे हमारे पास.
लेकिन आप मुझे बताइए कि हम ऐसा कह दें कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स है और इस वजह से डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। तो ही शुड रियलाइज दैट डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब मुझे वापस उस बात पे आते क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैंने कहा चेन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर। आपके चलिए छोटा सा एग्जाम्पल आपके घर से लेते हैं। आपके घर में अगर 6 पीपल है, ठीक है, फैमिली में 6 पीपल है और घर में कोई नई चीज लेकर आने, समझ लीजिए कार भी लेके आनी है या कोई आपके घर में कोई मैरिज होनी है या कोई भी इस तरह का बड़ा जो है फंक्शन होना है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे कि कहाँ पर कैसे रहेंगे। तो मुझे बताइए कि सारे आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम, पहले टाइम में होता था कि घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो डिसीजन ले लेते और सब बच्चे उनको मानते थे। लेकिन बिकॉज टुडे वी आर नॉलेज वेरी अवेयर, वेरी एजुकेटेड पीपल, तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं, चिल्ड्रन को उनको जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन। तो जितने लोग घर में होंगे वो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कशन में नेगोशिएशन होगा, हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स भी हो, बहुत सारी चीजों में हमारे क्लैशेस भी हो, लेकिन जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी बेटर एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि वो सारी चेन से निकल के वो बात वहां तक पहुंची है। उसके बाद उसके ऊपर सारी चीजों को, उसके प्लस और माइनस को देख करके उसका डिसीजन आया है। तो आप मुझे बताइए कि जो डिसीजन आया, प्रोसेस लंबा हुआ लेकिन जो डिसीजन आया वो कैसा था? क्वालिटी डिसीजन। अब इसको आप डेमोक्रेसी से समझ लीजिए। हमारी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट की हम बात करें कि जैसे कि मैंने आपको कहा, अपने यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो स्पेशली देखना वो मुझे लोगों का ऐसा कहना है कि जहाँ पर जो कोई भी काम है ना वो बहुत देर से होता है। देखो अब सरकार ने ये बात की, पता नहीं कब फैसला आएगा, ये बात सुनने में मिलती है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ टेकिंग डिसीजन। डिले जरूरत, एक्सेप्ट, इट इज एक्सेप्टेड, डिले होता है, लेकिन वो डिले किस लिए है? क्योंकि उसमें डिस्कशन है, नेगोशिएशन है, इसलिए वो एक रूम, दे जस्ट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ रूम ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन टू टेक क्वालिटी डिसीजन। आप मुझे बताइए जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, मोनार्क सिस्टम है, वहां पर लोगों से पूछा जाता है क्या? नहीं पूछा जाता। यहाँ तक कि आप लोगों में मतलब अब जो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री में जो भी पढ़ेंगे आप उससे रिलेटेड, उसमें भी आप देखेंगे कि वहां पर वो भी लॉ बनाए जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसी बात जो लोगों के लिए है लेकिन लोगों से नहीं, लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, दैट इज गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी इज गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जस्ट यू कंपेयर योरसेल्फ और आंसर योरसेल्फ। अब बताइए, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी वी शुड कंपेयर between different governments, their policies and programs, and taking decisions. The second feature, we accept this, that democracy improves the quality of decision. Third, method to deal with differences and conflicts. What do you mean by this? Differences. We all are human beings. We are intellectually different. Ideas are different. We belong to different communities. There is a diversity in society. We should just talk about the diversity of India. Different spheres, diversity is found in different spheres like language diversity, caste diversity, religion, all types of diversity found in India. So it is very obvious that there is a conflict and we should say that some differences are also there. But because of this reason, we should not accept democracy. So that's why we should accept that democracy provides a room or democracy provides a opportunity to resolve all these conflicts and differences. Only in this government, just we can take example of another country. Differences and conflicts. अगर किसी और देश में होते तो क्या होता? या तो हम डिफरेंसेस और कंफ्लिक्ट को सब्जुकेट कर दिया जाता, सप्रेस कर दिया जाता, सुनते ही नहीं। जो मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल कह रहे थे सिर्फ उन्हीं को फोकस करते हो, ठीक है। जो माइनॉरिटी ग्रुप, अब इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर हर ग्रुप को, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ ग्रुप, they are secured, given equal rights to them. That's why there is a right of, what is the right? Cultural and educational rights. This is especially given to minority group of people. इसलिए कि जहां पर मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल है वो माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल को सब्जुगेट ना कर, उनके डिफरेंसेस, उनके कॉन्फ्लिक्ट को क्या करें?
accommodation. This is very necessary. Accommodation here is state. हमारे इंडिया की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, it is a unique. It is we should say that just facing all types of challenges, diversity that time was also a challenge. And to keep all these diversity in mind, our constitution framers, they gave accommodation in our constitution. That's why the different rights are given to citizens. And I just give you example of constitutional, that is the cultural and educational. So it is obvious that there are differences, there are, we can say, conflicts also, but we have the scope to discuss, we have the scope to discuss different matters, and we have the freedom to profess, to just express our opinion. We have this freedom. Nobody can encroach it. But because of all these reasons, डिफरेंसेस हैं, क्लैशेस हैं, डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार है, इसलिए डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। क्या केवल इस बात से कि यहाँ पर क्लैशेस डिफरेंसेस है, क्या किसी और गवर्नमेंट में क्लैशेस डिफरेंसेस नहीं है? लेकिन यहाँ पर क्लैशेस डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जाता, कैसे किया जाता है? दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे जो दिमाग में चीज आनी चाहिए वो यही है कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, these are resolved through negotiation and discussion and giving them the accommodation in government as well as in society. तो आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए आपके कोर्स से नहीं है, देखिए फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, बट सेकंड चैप्टर इज टोटली रिलेटेड टू योर फर्स्ट चैप्टर। मैंने करीब आपको सारे एग्जाम्पल सारी कंट्रीज के बताए थे, और केवल सुनना ही नहीं है, आपको माइंड में उसको रखना है। आपको टाइम टू टाइम नोट्स भी मिलेंगे, और ये तो काफी टाइम से एनसीईआरटी बुक्स चली आ रही है जो सबके पास होगी, राइट? तो सबके पास नोट्स मिलेंगे। यू गो थ्रू द चैप्टर वेरी सीरियसली एंड माइन्यूटली, ईच एंड एवरी लाइन एंड मीनिंग ऑल्सो, इसका क्या मतलब निकल रहा है। देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर डेप्थ में आपको जाना होगा, तभी चीजें समझ, लिखना भी तभी आएगा। क्योंकि ये जो लेसन है, स्पेशली इट इज द आर्गुमेंट बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मोस्टली ऐसे ही है, फिर हमने उसके अंदर कुछ टीचर्स को लिया है। तो इन सब चीजों को आर्गुमेंट, इसीलिए मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, ज्यादा इनको कंपैरिजन के साथ बता रही हूँ, ताकि आपको बहुत क्लियर हो कि वास्तव में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेसी क्यों बेस्ट है, और आज हर कंट्री आप लोगों को डेमोक्रेटिक क्यों चला रही है, क्योंकि आप कंपैरिजन से जब समझ रहे हैं तो ही समझ में आएगा। That's why the third feature is method to deal with differences and conflicts. It is only possible in democratic countries. It allows us to correct its own mistakes. चलिए, there is no guarantee कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो कभी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, हमें भी ऐसा लगता है, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, है ना, और कई बार न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हैं, बातचीत करते हैं आपस में पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, तो हमें ऐसा लगता है गवर्नमेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा कई बार हमें लगता है कि ये प्रोग्राम पॉलिसीज होती तो शायद बेटर आउटकम्स होते। समटाइम्स वी डिस्कस ऑल द थिंग, लेकिन व्हाट इज द गुड थिंग हियर, दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अस अ रूम वेयर वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक। करेक्शन हो सकता है। अब करेक्शन कैसे होगा? क्या गवर्नमेंट को खुद को पता चलेगा कि हमने गलती की है? गवर्नमेंट को मिस्टेक का पता तब चलेगा जब लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वी हैव दिस राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी किसी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया है तो हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। बिल्कुल है, हमारे पास राइट है इसकी। और जब मास प्रोटेस्ट होता है ना, मास प्रोटेस्ट जब होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार है उस फैसले को वापस ले लेगी। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ टाइम पहले एक लॉ आया था पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड। उसमें ये था कि जिनके 3 चिल्ड्रन हैं, 3 बच्चे हैं, दे कांट कंटेस्ट द इलेक्शन, वो सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। समझ रहे हैं आपको? तो आप मुझे बताइए
कि इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथफुल हुई या डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ कम हुई? ऑब्वियसली कम हुई, क्योंकि हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी, ऐसी कंडीशन कि जिसको अब चेंज नहीं किया सकता। जिनके 3 चिल्ड्रन है यानी वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको डिप्राइव कर दिया। उन्होंने क्या किया, फिर उनको भी तरीके आते हैं, उन्होंने मतलब अपने बच्चों को किसी को आगे वोट दे दिया, है ना, या इधर उधर जैसे भी कर सकते थे मीन्स उन्होंने यूज किया। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत, हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का डिसीजन जो था, इट वाज नॉट गुड, बट लेटर इट चेंज। और अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी में हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक राइट दिया है, तो इससे डेमोक्रेसी क्या हुई है, इसको स्ट्रेंथ मिली है। बिकॉज नाउ द सिटीजन्स आर मोर विजिलेंट, मोर इन्फॉर्म्ड, एंड गवर्नमेंट वर्क इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी आई है क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, दिस इज आवर राइट टू आस्क to get the information related to the work of government. Just only the defense and security related issues or matters we can't ask. In this way, we say that why it allows us to correct this own mistake. Example दिया है मैंने आपको, उस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में ही मिस्टेक्स होती है, क्योंकि कोई चीज की गारंटी नहीं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमारे से बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होती है, बट because we have this intellectual, because we have this, we can in future we promise to our parents that we will not repeat this mistake. यही कहते हैं। So same thing is there, that democracy, it provides us a room where we can just correct our mistakes and through negotiation and तो कहने का मतलब ये कि all these teachers, there is a long argument between student and teachers, बहुत सारे ऐसे aspects और हैं, but what are the more important things are where I discussed it. So in this way we come to know that democracy, by what is democracy, why democracy. To all these points we come to know that by the most of the countries in today's world, they want to be called a democratic nation. In actually they are not democratic, but they want to be called democratic because of all these features and other features. If you listen about the animation or subjugating and crossing the fundamental rights of citizens, but how you will see? तो वो आप क्या सोचेंगे, वो कंट्री कैसी है जहाँ पर लोगों को अधिकार नहीं है, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंट्री को आपकी नजर में क्या होगा, आज के वर्ल्ड में अगर ऐसी कंट्री है तो उस कंट्री की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उस कंट्री की कोई भी यूं कहा जाए कि पूरे यूं कहा जाए कि बहुत सारे उस कंट्री से रिलेटेड हो सकता है, उसकी बहुत सारे आर्गुमेंट को लेकर हम लोग काफी आर्गुमेंट करें, उसके ऊपर एलिगेशन लगाए, हम लोग पता हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक इमेज नहीं होगी उस कंट्री की। लेकिन आज वो कंट्री जो अपने लोगों को पार्टिसिपेशन है, इन इंडिया स्पेशली यू सी दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, they framed the constitution according to that. We should say that there was a dream of the constitution makers that the common people should also participate in taking the decision of the government. Same चीज है, directly or indirectly they are participating. हम लोग किसी भी तरह से गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं। आज भी देख लीजिए, हम हर मतलब जो कायदे हर स्टेप से वी आर ऑल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। दिस इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। हमें किसी ने कहा नहीं है, हमें मुझे मतलब आप समझ लीजिए कि आपको आप मतलब वो कहा जाए कि डेलिबरेटली उस चीज को नहीं कर रहे, आप ऑटोमेटिकली उस चीज को कर रहे हैं, है ना। ऑटोमेटिकली मीन्स आपको पता है कि मुझे, बिकॉज इट इज इन आवर सोसाइटी, मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजन इज ऑल्सो देयर। हमें कई चीजें मॉरली सिखाई जाती है, यू शुड डू इट, यू शुड नॉट डू इट, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती, सोसाइटी इसको नहीं करती। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे माइंड के अंदर सेट हो गया है कि हमें ये काम करने से हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारे लिए नहीं, ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये लीगल है, ये लीगल है। और प्रूडेंशियल रीजन हम अगर समझे तो हमें ये समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी जो है वो ही एक ऐसी गवर्नमेंट है कि सारे फीचर्स प्रूडेंशियल रीजन है, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया है। प्रूडेंशियलिटी मीन रैशनैलिटी।
आर्ग्यूमेंट इज देयर, जहां पर हम कारण बताते हैं किसी चीज का, वो अपने आप एक्सेप्टेबल हो जाता है, उसके पीछे कोई किंतु परंतु नहीं रहता। आज मैं आप अपनी सरकार से जुड़े हुए हैं, हम उन कामों को कर रहे हैं, अपने दिल से जुड़ कर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सरकार में, हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो क्वालिटीज है जो बिना कहे मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फॉलोइंग दोज रूल्स। दिस इज डेमोक्रेसी। Both the concepts here we declare what is, explain what is democracy, why democracy. Now we sum up the whole defense here. In previous class, I explained you what is democracy. There, the people have one vote, one value, free and fair election. The elected rulers, they have the right to take decisions. And one more thing, that is, these are the features of what is democracy. Democracy क्या है? अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे democracy क्या है, तो आप सबसे पहले तो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन दे देंगे, ये है by the people, for the people, of the people. But इतना कहने से, जैसे मैंने कहा ना, democracy is that form of government where the rulers are elected by the people. Is it very sufficient definition? No. I have to explain and elaborate everything and each word of the definition. इसीलिए हमें समझ में आया कि क्या है और कैसे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको समअप करें तो हमें जो हमारे सामने जो इसके फीचर्स अगर सामने आए तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं? डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। प्रॉब्लम्स हमने अभी बात करी, मैंने इसीलिए आपको कंपैरिजन के साथ पढ़ाया कि प्रॉब्लम जो है तो सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, केवल डेमोक्रेसी में नहीं है, केवल बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन कि हमने जो आर्ग्यूमेंट किए, हमें डेमोक्रेसी नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी डिस्कस व्हाई द डेमोक्रेसी इज गुड, व्हाई द डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई वी एक्सेप्ट। नाउ द सेकंड इज it is better than any other alternative. It offers better chances of good decision because negotiation is there, discussion is there. तो जो भी डिसीजन आएगा वो गुड आएगा। एक पर्सन डिसीजन ले ले, उससे बेटर है कि 10 लोग अगर बैठे हैं। इसीलिए इट्स माय आई शुड से वे ऑफ टीचिंग कि कोई भी क्लास के अंदर अगर ये रूटीन, जो हमारी रूटीन क्लासेस होंगी, मेरा जो वे है वो यही रहता है कि चिल्ड्रन के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन होती है। That's why teaching always both sides. आप क्वेरीज है, आपसे पूछे, आप उसमें पार्टिसिपेशन थे, तभी आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो गुड डिसीजन क्या आएगा? गुड डिसीजन तभी आएगा जब हम सबका पार्टिसिपेशन होगा। इट इज फेल्स टू डू समथिंग इज ऑलवेज ए वे ऑफ करेक्टिंग। समझ कर रहे हैं इन सारी चीजों का। इनिशियली इट कैन बी पॉसिबल दैट इट जस्ट प्रूव टू बी लूजर। कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें इसको लॉस हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, बट it has the time, it has the scope, it has the room to take good decision. तो वो ये चीज इसी में पॉसिबल है। एंड ऑल्सो ऑफर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। मुझे बताइए किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डिग्निटी है वो कहीं? डिग्निटी मतलब क्या है? सम्मान। एक डेमोक्रेटिक, देखो बच्चों, फंडामेंटल राइट्स अलग चीज होती है, डेमोक्रेटिक राइट्स अलग चीज होती है, वो आपके क्लास से थोड़ा सा बेसिक आइडिया देती है। फंडामेंटल राइट्स, दीज आर इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक राइट्स, इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। डिग्निटी, it is the constitution is amended and our judiciary reinterpreted the rights, fundamental rights also. तो जो इक्वालिटी जो राइट है ना, राइट टू इक्वालिटी, उसमें डिग्निटी राइट बाद में जुड़ा कि हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो लो कास्ट है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे विमेन है, चाहे चिल्ड्रन है, चाहे पुअर है, चाहे बहुत ही जिसको कहा जाए कि बहुत ही कमजोर जो सेक्शन ऑफ पीपल है, उन सबकी डिग्निटी। तो पॉसिबल किसमें? डेमोक्रेसी में। तो डिग्निटी, that's why democracy is considered the best form of government. I hope that you understand the meaning here. What is the democracy? What is democracy? Why democracy? And through all the features, through the proper discussion, thoroughly we discuss all the features and giving with examples and comparative study of different countries, we now come to understand that why the democracy is the best form of government. And that's why the travel, the journey you have started with first chapter of this democracy, it
will be end with also democracy in class 10th. It will not end in your 9th class. It will end in your 10th class, where you will read more about the deep meaning of democracy. If you have doubts, any query related to this chapter, you can ask right now. Please raise your hand. खाली 2-3 बच्चे रहे एंड करिए Divyansh? गेस्ट मती बस Nobody raised their hand. No. Divyansh, have you any query? No question is there. Okay. So we covered whole chapter. We discussed very clearly. Till then, tomorrow we will start a new topic. Remaining some portion is remaining. Tomorrow we will cover that. And till then, have a nice day.